Namaskar, my all dear student of class 11. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the revision part of your subject English for the upcoming examination. Today we are taking the poem number 1, a photograph from the main course book, Hornbill, written by Shirley Tolson. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. The poem A Photograph is written by Shirley Tolson. In this poem, she recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph. So what exactly she was doing? She was recalling. Recalling is called remembering. When you are remembering something, and what she was remembering about her mother. And the memories related with her mother, that how she spent her childhood, and from which she is recalling this thing through a photograph. When her mother was 12 years or so, and then that time in that photograph, her mother, Shirley Tolson mother, was of 12 years old. She has been deceased 12 years ago, and she cannot explain her grief on her mother's loss. Now the mother of Shirley Tolson is not there with her, and she has died before 12 years, and this is the grief. Grief means sorrow. This sorrow of her mother loss, of losing her mother, she cannot describe in the words. So in this poem एक फोटोग्राफ है जिसमें उसकी जो राइटर हैं उनकी माँ का फ़ोटो है, और वो फ़ोटो देखकर वो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रही हैं. मीन्स वो फोटोग्राफ है, वो उनकी मदर के चाइल्डहुड का फोटोग्राफ है जिसमें उनकी मदर का पिक्चर है. उसको देखकर वो याद कर रही हैं कि कैसे मदर अपनी चाइल्डहुड में इंजॉय करती थी. वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि अब उनकी मदर उनके साथ नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है. एंड राइटर अपने इस सॉरो को, इस ग्रीफ को वर्ड्स में डिपिक्ट नहीं कर पा रही है कि हाउ शी वॉज फीलिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ अ मदर. ठीक है, अब हम लाइन बाय लाइन इस पोम का जो लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, एंड सम ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस वील ऑल्सो डिस्कस. पहले देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया क्या है. नाउ व्हाट इज सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल मीन्स whatever is there in the middle. Idea is called thought. Then whose central idea we can say? Means when the poet is writing any of the poem, तो उसके माइंड में कुछ थॉट रहता है, कुछ एम रहता है, कुछ पर्पस रहता है कि मैं ये पोएम किसके लिए लिख रहा हूँ पोएम, और ये किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिख रहा हूँ, किसको डेडिकेट कर रहा हूँ, व्हाट आई जस्ट वांट टू डिस्क्राइब इन दिस पोएम. सो ये सेंट्रल आइडिया होता है. तो यहाँ पे जो हम सेंट्रल आइडिया देख रहे हैं, दैट इज वी आर ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑफ द पोएट when she or he was writing this poem. Shirley Tolson's poem of photographs is a tribute to her mother. Tribute is called एक श्रद्धांजलि जिसको हम बोल सकते हैं, वो देती है इस पोम के थ्रू. यानी कि मेन चीज़ क्या है? Through this poem, Shirley Tolson want to dedicate this poem to her mother. The poem describes 3 stages in the passage of the time. 3 stages इसमें describe की गई हैं. In the first stage, the photograph shows the poet's mother is standing at the beach enjoying her holiday with her 2 girls. पहली जो स्टेज है उसमें जो फोटोग्राफ है वो क्या शो कर रही है कि जो उसकी मदर है वो कहाँ पे खड़ी हुई है? एक बीच पे खड़ी हुई हैं, एंड उनके साथ कौन है? 2 लड़कियां और हैं जो उनकी कज़न हैं, और वो तीनों लोग एंजॉय कर रही हैं. ये उनका एक हॉलीडे, किसी हॉलीडे पे वो बीच गई हैं और वहाँ पे ये तीनों लड़कियां एंजॉय कर रही हैं. She was just around 12 years old at that time. उनकी माँ उस टाइम कितने साल की थी? 12 साल की थी जब वो फोटोग्राफ है. The second stage takes as 20 or 30 years later. जो second stage इसमें डिस्क्राइब की गई है वो 20 या 30 साल के बाद है. मतलब 12 के बाद 20 साल और 30 साल, तो हम बोल सकते हैं 32 या 42 साल, 32 या 42 years after. Then the mother would laugh at the way she and her cousins were dressed up for the beach holiday. और उस फोटोग्राफ में जो मदर हैं वो क्या कर रही हैं? शी वॉज लाफिंग विद हर कज़न, उनकी कज़न के साथ हैं. एंड वो किस तरह से ड्रेसअप हुए हैं? जैसे कि बीच हॉलीडे पे होना चाहिए. मतलब वो लोग प्रॉपरली ड्रेसअप होके अपना हॉलीडे स्पेंड करने के लिए वन ऑफ द बीच पे गए हैं. इन द थर्ड स्टेज, जो तीसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज जो है, द पोइट रिमेंबर्स द डेड मदर विद अ हैवी हार्ट, एंड द फोटोग्राफ रिवाइव्स नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द
पोएट। तीसरी स्टेज में जो प्रेजेंट है, मीन्स ये प्रेजेंट का है, जो दोनों स्टेज है वो पास्ट को डिपिक्ट कर रही हैं, जो थर्ड स्टेज है वो प्रेजेंट को डिपिक्ट कर रही है। व्हेन द पोएट वाज रिमेंबरिंग हर मदर विद अ हैवी हार्ट इज कॉल्ड, शी वाज रियली कैरिंग लॉट्स ऑफ sorrow in her heart. Why? Because she has already lost her mother. And this photograph, through this photographs, revive is called, again recollect all the nostalgic feeling in the poet. Nostalgic is called when you are remembering something that happened in the past, and by remembering those memories you are feeling sad. That is called nostalgic feeling. ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया है। पूरी तरह से जो पोम है वो पोइट की मदर पे डिपेंड है, एंड पोइट की जो मदर है वो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है कि वो पहले कैसे चाइल्डहुड में थी, कैसे उन्होंने टाइम स्पेंड किया अपना चाइल्डहुड में, एंड हाउ नाउ पोइट हैज़ लॉस्ट हर मदर, एंड उसके बाद जो पोइट की जो फीलिंग्स हैं शी इज़ नॉट एबल टू डिस्क्राइब इन हर वर्ड। ठीक है, सेंट्रल आइडिया, आई होप आपको एक जनरल आइडिया मिल गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पोम में। चलो देखते हैं स्टैंजा नंबर 1। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousin went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 years old. पहले बोर्ड मीनिंग्स देखो। कार्डबोर्ड हियर मीन्स वेरी स्टिफ पेपर बोर्ड, बट यहाँ पर जो पेपर बोर्ड है, जो जिसको आप कार्डबोर्ड बोलते हो, जो हम यूज़ करते हैं अपने मॉडल्स में, जो स्कूल के मॉडल्स बनाने में, एंड हियर ऑन दिस पेपर बोर्ड ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज पेस्टेड। फोटोग्राफ क्या होता है? जस्ट अ कार्ड शीट, उसको फिक्स किया जाता है कार्डबोर्ड पे, तभी वो स्टिफ फोटो फ्रेम के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो ये जो फोटोग्राफ है वो जिस कार्डबोर्ड पे लगी हुई है, तो एक्चुअल में जो कार्डबोर्ड है वो फोटोग्राफ को बोला गया। तो आप बोल सकते हो कार्डबोर्ड इज डायरेक्टली मेंशन्ड एज अ फोटोग्राफ हियर। देन पैडलिंग इज कॉल्ड वॉकिंग थ्रू द शैलो वाटर बेयर फीट। जो जहाँ पर पानी होता है, कम पानी होता है, जो वहाँ पे आप अनकवर्ड फील्ड में नंगे पैर जो चलते हो, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग। Big girl. Mother is referred here to the big girl as she was the eldest among the 3 girls. जो उसकी माँ है, कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। जो उसकी माँ है वो सबसे बड़ी हैं उसमें, that's why it's a big girl. Big girl किसके लिए आया है? पोइट्स मदर के लिए। चलो अब एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। वो फोटोग्राफ, कार्डबोर्ड को हम यहाँ क्या बोलेंगे? फोटोग्राफ मुझे शो कर रही है कि कैसा था, क्या था। When the two girls cousin went paddling, जो 2 लड़कियां हैं जो cousin हैं, they were doing the paddling means they were walking in the shallow water, और ये उस फोटोग्राफ के थ्रू दिखा जा रहा है। Each one holding one of my mother's hand, दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, यानी कि जो माँ थी वो सेंटर में थी, one of the cousin girl was here side left side and one right side, both the cousin were the either side, और माँ उनकी बीच में थी। And she the big girl some 12 years old, और जो थी वो उस टाइम पे कितने साल की थी? 12 साल की थी, और सबसे बड़ी थी, यानी कि जो उनकी कजिन थी वो उनसे छोटी थी। ठीक है, तो स्टैंजा नंबर 1 में हमने क्या देखा? जो फर्स्ट स्टेज है कि जो फोटोग्राफ है उसमें क्या दिखाई दे रहा है? 3 girls holding one another's hand, and in the center poet's mother was there. That time she was of 12 years old, and 3 of the girls were paddling in the water. ठीक है, I hope it is understood. Stanza number 2. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. Word meaning, still is called without any movement or shaking, बिल्कुल सीधे, बिना किसी कोई भी मूवमेंट नहीं है उसमें, that is called still. Smile through, smiling faces could be seen through their hair which was flying over their faces, like when you are outside somewhere like on the beach या कहीं बाहर होते हो तो हवा चलती है तो आपके बाल उड़ते हैं, when your hairs are flying तो कुछ बाल faces पे भी आ जाते हैं, and when you are smiling mean that is smile is just peeping out of those flying hairs, उड़ते हुए बालों के बीच में से आपका स्माइल और प्यारा सा चेहरा दिखता है, that is described here. Okay, and then smile through मतलब बालों के पीछे से, बाल आगे हैं और उसमें से स्माइल दिख रही है। Terribly is called extremely, and transient is called temporary or lasting for a short time, not permanent. Okay, चलो अब ये explanation देखते हैं. All 3 stood still to smile through their hair.
तीनों जो लड़कियां हैं, 3 किसके लिए आया है, तीनों लड़कियों के लिए, मदर एंड उनकी कजिन के लिए, वो लोग खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर वर फ्लाइंग इन द एयर एंड सम ऑफ द स्टैंड ऑफ द हेयर, सम ऑफ द लॉक्स ऑफ द हेयर आर कमिंग जस्ट बिफोर देयर फेसेस, और उसके बालों के पीछे से उनकी स्माइल दिख रही है। एट द अंकल विद द कैमरा स्वीट फेस। और कौन है वहां पे, 4 लोग हैं भाई, फोटोग्राफ में 3 है, अब फोटोग्राफ में अगर 3 है तो वो फोटो किसी ने तो खींचा होगा। सो देयर वॉज अंकल, उनके अंकल हैं जो कैमरा लेकर खड़े हैं उनका फोटो खींचने के लिए। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। उस टाइम पे जब मेरी मदर 12 ईयर्स की है, उनका जो फेस है वो बहुत प्यारा है। बच्चे होते हैं उनका फेस कितना प्यारा होता है, कितना स्वीट, कितना इनोसेंट फेस होता है बच्चों का। जैसे 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 वी आर जस्ट ग्रोइंग टू आवर एजेस and because of the responsibility, stress and because of the means that innocence somewhere keep diminishing, वो ख़त्म होती जाती है। जब innocence आपके दिल से ख़त्म होती जाती है वो फेस पे नज़र आता है। how you are getting maturity, how you are early, means learning the unwanted and the thing that not makes you very innocent and that not leaves you any more innocent। तो उस टाइम का बता रही हैं कि जब मेरी मदर 12 साल की थी, जैसा फोटोग्राफ में उनका चेहरा दिख रहा है वो बहुत सुंदर था, और उस टाइम पे मेरा जन्म नहीं हुआ था। वो तो खुद ही बच्ची थी जब मदर 12 साल की थी, उस टाइम पे मैं नहीं थी, लेकिन इस फोटोग्राफ को देखकर मैं बोल सकती हूँ मेरी माँ का चेहरा बहुत सुंदर था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो सी है वो अभी भी है। देखो माँ नहीं है बट नेचुरल एंटाइटीज जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो अभी भी रहेंगे ना। अगर वो जानना चाहें कि भाई यहाँ पे मेरी माँ विजिट करने आई थी तो सी इज देयर ओनली, ठीक है। दैट सी इज देयर विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। विच किसके लिए आया है, विच आया है सी के लिए, और जो दिखता है, क्या दिखता है, सी दिखता है, कैसा दिखता है, चेंज लेस। उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है। नेचुरल एंटाइटीज में क्या चेंज आएगा, व्हेन वन थिंग इज गोइंग टू बी डिमिनिश, तो नई चीज़ आ जाती है, उसका नया बर्थ हो जाता है। बट सी दैट इज द मीन्स कंप्लीट मास ऑफ द वाटर, इतना बड़ा, तो वो चेंज नहीं होगा। वो जब वहाँ पे जाती है, मे बी शी माइट हैव गॉन देयर टू जस्ट हैव अ विजिट कि दिस इज द सेम प्लेस वेयर हर मदर यूज्ड टू कम टू स्पेंड हर हॉलीडेज, तो वहाँ गई थी तो उन्होंने देखा जो सी है, समुद्र है, वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। washed their terribly transient feet, washed मतलब धो देना, terribly is called extremely, transient is called temporary, feet is called पैर। पैर किसके होते हैं, ह्यूमंस के पैर होते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं। and extremely terribly is called means this is really very hard to accept that yes one day we'll all die, ठीक है। हम लोगों की परमानेंस यहाँ पे लाइफ नहीं है, वी आर नॉट हैविंग अ परमानेंसी इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। यहाँ से सबको एक ना एक दिन जाना ही जाना है। यानी कि यहाँ पे फीट के थ्रू ह्यूमन को डिस्क्राइब किया गया है कि ह्यूमन कैसा है। दिस इज द वेरी एक्सट्रीमली वी कैन से ना द बिटर ट्रुथ दैट वी ऑल आर टेम्पररी एंड अगेन लाइक आज मैं आई हूँ बीच पे घूमने, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, हम लोगों के मर जाने के बाद कोई और आएगा। मीन्स द ह्यूमन्स कीप्स ऑन कमिंग एंड दे आर नॉट परमानेंट। वो चाहेंगे आएंगे, हम लोग आते जाते रहेंगे, बट जो नेचुरल एंटाइटीज हैं वो वैसे ही रहेंगी। हम लोग आएंगे, बीच पे खड़े होंगे, दैन द वेव विल कम, वॉश आवर फीट्स एंड गो। सो दीज फीट्स आर ट्रांसिएंट, ह्यूमन्स आर ट्रांसिएंट, ओके। तो यहाँ पे किसके लिए आया है, जैसे मेरी मदर थी वो यहाँ पर आई थी बट अब वो नहीं है। आज मैं आई हूँ, कल मैं नहीं होंगी, एंड ये जो सी है, ये जो नेचुरल एलिमेंट हैं वो रहेंगे। आई होप ये आपको समझ आया। तो सेकेंड स्टेज में क्या बताया गया है, सेकेंड स्टेज में ये बताया गया है द मीन्स हाउ दैट फोटोग्राफ एग्जिस्ट। वो फोटोग्राफ कैसे आई, अंकल ने फोटोग्राफ खींची, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ग्रिम रियलिटी बताया गया है कि हाउ माई मदर वॉज वंस ऑन द बीच बट नाउ शी वॉज नॉट देयर, वाई, बिकॉज ह्यूमन्स आर टेम्पररी, ठीक है। आगे चलते हैं। Stanza number 3 देखो, some 20-30 years later she would laugh at this snapshot. She, Betty and Dolly, she says, and look how they dressed for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Snapshot is called photograph, ठीक है। फोटोग्राफ को ही बोलते हैं शॉट इज कॉल्ड, स्नैपशॉट को जो खींचा गया शॉट है उसको फोटोग्राफ बोलते हैं।
ड्रेस्ड अस, पुट ऑन द क्लॉथ, कोई कपड़े पहनना. राय इज कॉल्ड डिस्गस्टेड. डिस्गस्टेड बोल सकते हो आप इसको, फिनिश्ड बोल सकते हो, कंप्लीटेड, ऑल एंड अप बोल सकते हो इसको. लेबर्ड इज कॉल्ड अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क डन विद द ग्रेट एफर्ट्स. बहुत मेहनत से किसी चीज को कमाना, उसको साकार करना, दैट इज कॉल्ड लेबर्ड. ईज इज कॉल्ड कंफर्ट. ठीक है, आराम से, बहुत ध्यान से या प्यार से, मतलब विदाउट एनी एफर्ट, दैट इज कॉल्ड ईज. अब देखो, सम 20 ईयर और 30 ईयर्स लेटर, अभी कल किसकी बात बता रही हैं, 12 साल की थी, मतलब वो फोटोग्राफ है उसके 20 या 30 साल बाद. ठीक है, तो 20 या 30 साल बाद हम बोल सकते 32 या 42 ईयर्स की है. एंड देन शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. यहाँ पे शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, और वो किसको देख रही हैं, वो उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं. और वो क्या बोल रही हैं कि सी बेटी एंड डॉली, यानी कि ये मदर फोटोग्राफ देख रही हैं. उस टाइम पे उनकी मदर थी, अभी नहीं है, बट दैट फोटोग्राफ, यानी कि अगर हम 20 साल मानते हैं तो 32 ईयर्स, या अगर 30 साल मानते हैं तो 42 ईयर्स, जब उनकी मदर खुद ये फोटोग्राफ देख रही हैं और वो हंस रही हैं. क्या बोल रही हैं वो बोल रही हैं कि सी द बेटी एंड डॉली, जो उनके साथ दो कजिन थी. मदर का नाम नहीं दिया गया है, कजिन का नाम दिया गया. एक बेटी थी और एक डॉली थी. ठीक है, ये याद रखेंगे. एंड वो क्या बोल रही हैं, वो बोल रही हैं कि देखो, लुक हाउ दे ड्रेस अप, हम लोगों ने कैसे तैयार हुए हैं, मतलब हम लोगों को हॉलीडे पे जाना था. एंड दिस थिंग शी वॉज शेयरिंग विथ हर डॉटर, यानी कि अपनी जो पोइट है शिर्ले टॉल्सन के साथ शी वॉज शेयरिंग ऑल दीज थिंग, कि उस टाइम पे देखो ये बेटी और डॉली हैं, और हम लोग किस तरह से बीच पे जाने के लिए रेडी हुए थे. द सी हॉलीडे, क्यों जा रहे थे भाई, एक हमारा हॉलीडे था. एंड दैट्स अ हॉलीडे वी वांटेड टू स्पेंड ऑन सी बीच. हर वॉज हर पास्ट. ये जो चीज़ है जो वो यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं, ये उनका पास्ट है. ठीक है, यहाँ पे जो मदर डिस्कस कर रही हैं कि देखो ये हम लोग वहाँ पे गए थे हॉलीडे पे, किस तरह से हम लोगों ने ड्रेस किया था, हाउ वी वर एंजॉइंग. ये किसका पास्ट हुआ, मदर का पास्ट हुआ. वाई इट इज़ नॉट द पास्ट ऑफ द पोइट, बिकॉज पोइट तो उस टाइम पे थी ही नहीं. पोइट कैन जस्ट लिसन टू दीज इंसिडेंट इन अ फॉर्म ऑफ द स्टोरी, जो उसकी माँ बताएंगी. बट पास्ट किसका है, अगर आपने वो चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो वो आपका पास्ट कैसे हो सकता है. जैसे रामायण महाभारत, ये सारी जितनी भी हैं पास्ट, बट हम लोग नहीं थे यहाँ पे. वी आर जस्ट शेयरिंग द स्टोरी. ये पास्ट किसका है, जो जिसने उन चीज़ों को देखा है, जो उन चीज़ों से एक्सपीरियंस होकर आया है. तो ये पास्ट किसका है, उनकी मदर का पास्ट है. क्या पास्ट है कि हाउ दे वर एंजॉइंग एट देयर बीच. बट माइंड पास्ट इज हर लाफ्टर. हर किसके लिए आया है, यहाँ पे पोइट की मदर के लिए आया है. ठीक है, तो यहाँ पर पोइट की मदर का जो पास्ट है वो क्या है, यहाँ पर ये जो शी है ये भी पोइट की मदर है. ठीक है, याद रखेंगे, ये पोइट नहीं है, ये पोइट की मदर के लिए आया है. डॉली और बेटी उनकी कजिन है. तो मेरा पास्ट क्या है, मेरी मदर की स्माइल. जो मेरी मदर की स्माइल है, सॉरी, मेरी मदर की स्माइल है, वो मेरा पास्ट है, क्योंकि मैंने अपनी मदर को स्माइल करते हुए देखा है. दैट डे, यानी कि 30 और ये 20 और 30 ईयर्स के बाद जब वो ये चीज़ शेयर कर रही हैं अपनी बेटी से शेयर कर रही हैं, मतलब उस टाइम पे मैं थी, तो ये मेरा पास्ट है. एंड व्हेन शी वाज शेयरिंग दिस थिंग शी वाज स्माइलिंग, तो वो मेरा पास्ट है. यानी कि जब उन्होंने उसको स्माइल करते देखा, वो उनका पास्ट है. और मदर का पास्ट क्या है, व्हेन शी वाज देयर विद हर कजिन एंजॉयिंग ऑन द सी बीच. बट बोथ राय, बोथ का मतलब क्या हुआ, पास्ट. किसका पास्ट, मदर का और पोइट का, दोनों के जो पास्ट हैं. पोइट का मदर है, उनकी मदर की स्माइल, और मदर का पास्ट है उन्होंने कैसे द एंजॉयड दे द हॉलीडे स्पेंट ऑन द बीच. ये दोनों कैसे हो गए हैं, राय, खत्म हो गए हैं. दे बोथ फिनिश्ड नाउ दे आर नॉट एग्जिस्टेड. ये खत्म हो गए हैं दोनों विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जिसको हमने बहुत मेहनत से कमाया था बट बहुत आसानी से खो दिया. क्या होता है, मेमोरीज, द मेमोरीज दैट ब्रिंग्स अ हैप्पीनेस इन योर हार्ट, अ पॉजिटिविटी इन योर हार्ट, गिव यू स्ट्रेंथ टू फेस द डिफ़िकल्टी. वो सारी मेमोरीज आप कितनी डिफ़िकल्टी से इकट्ठा करते हो. मतलब स्माइल इज अर्नड. ठीक है, मतलब ये बहुत मेहनत करके कमाई जाती है. जो कंफर्टेबल डेज होते हैं, जो इंजॉयबल डेज होते हैं, वो उनको हम बहुत मेहनत से कमाते हैं, बट वो कितनी जल्दी हमसे छूट जाते हैं. कैसे छूट जाते हैं, वी आर डूइंग नथिंग, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ नेचर. जैसा गॉड या नेचर की जो भी डिमांड होती है, जो भी वो चाहते हैं वही होता है. तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है, जो खुशियाँ हम लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, वो कभी ना कभी अपने आप एकदम से हमको बहुत आसानी से
बिना किसी मेहनत के हमसे दूर चली जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सी खुशी कमाई थी? द स्माइल, बट नाउ शी वॉज नॉट हैविंग दैट स्माइल एंड द मदर वॉज नॉट देयर, एंड मदर के साथ वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। Stanza number 4 देखो, now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. Circumstances mean situation and silence makes someone unable to speak. ये भी थर्ड आपकी स्टेज में ही आएगा। थर्ड स्टेज में कब आएगा? जब एवरीथिंग मीन्स द मेन आइडिया ऑफ दिस पोइम हैज बीन डिस्क्राइब्ड, बट अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं कि अब प्रेजेंट में पोइट की उसके लिए क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पर शी हैज़ बीन डेड, ये अगेन ये शी किसके लिए आया है? ये आया है पोइट्स की मदर के लिए, ठीक है। अब वो नहीं है, अब वो हमारे साथ नहीं है। नियरली डेड एज मैनी एज, बहुत साल हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। एज दैट गर्ल लिव, जब वो लड़की रहती थी, यानी कि यहाँ पे ये लड़की भी किस चीज़ के लिए आया है? पोइट की मदर के लिए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, इस सिचुएशन में अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। ओनली जस्ट आई हैव नथिंग टू स्पीक इन ऑडिबल वर्ड्स, ठीक है। पोइट क्या कर सकती? किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता इसी करके। आप कोई भी कितने भी एफर्ट कर लो, कुछ भी कर लो, बट यू आर अनेबल टू ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक। वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। वो यही बता रही हैं यहाँ पे कि वो चली गई हैं, वो अब वापस नहीं आ सकती हैं, इसीलिए अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। अब थोड़ी बहुत होप तब रखते हो व्हेन यू आर स्टिल इन अ लिटिल परसेंट ऑफ होप के ओके वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट बैक, बट यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि वंस अ पर्सन, अ ह्यूमन जस्ट पास अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ही और शी कैन नेवर बैक, ठीक है। दैट्स वाई वो कह रही हैं कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो फील मैं कर सकती हूँ, बट मैं वो नहीं बोल सकती हूँ। दैट्स वाई शी वॉज गोइंग अगैन एंड अगैन ऑन द टॉम ऑफ her mom and she was crying, nothing except that she could not do anything, ठीक है। तो this was the poem, a simple we can say as nostalgic feeling वाली poem थी ये। I hope आपको समझ आई। अब थोड़ी सी पोइटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एल्यूजन। नाउ व्हाट इज एल्यूजन? एन एल्यूजन इज अ रेफरेंस और एन इंसिडेंटल मेंशन ऑफ समथिंग। क्या होता है? रेफरेंस, किसी का रेफरेंस होता है जो बताया जाता है, या तो ये इंसिडेंटल हो सकता है, किसी इंसिडेंट या घटना पे बेस हो सकता है, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से रिलेटेड, ईदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। या तो आप डायरेक्टली उसको बता रहे हो कि ये जो घटना है वो उससे रिलेटेड है, ये डायरेक्टली बता दिया आपने, या फिर उसका कोई इम्प्लीकेशन, कोई प्रभाव, ठीक है, कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट है कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो इंसिडेंट है, ये उस इम्पैक्ट की वजह से हुआ है। वहाँ पे एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन इन दिस पोएम इज अ कार्डबोर्ड विच एक्चुअली रिफर्स टू द फोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है, क्या बताया था? कोई घटना या कोई चीज़, कोई घटना हो सकती है जो किसी चीज़, किसी कॉन्सिक्वेंस से या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, या कोई चीज़ जिसको आप किसी और से रिलेट करके बता रहे हो। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड क्या है? कार्डबोर्ड इज अ थिंग, बट इसको क्या बताया जा रहा है? फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड एक्चुअली में फोटोग्राफ, कार्डबोर्ड कहाँ होता है? फोटोग्राफ के लिए फोटोग्राफ वर्ड है, कार्डबोर्ड के लिए कार्डबोर्ड है, बट यहाँ पर इस पोम में कार्डबोर्ड को किसकी जगह यूज़ किया गया है? फोटोग्राफ। जहाँ पे भी कार्डबोर्ड आया है उसका मतलब है फोटोग्राफ, यानी कि किसी चीज़ को किसी और के नाम से बताना या किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको डिपिक्ट करना, डिस्क्राइब करना, दैट इज अल्यूजन। नेक्स्ट इज एलिटरेशन, is the repetition of the initial letter, generally a consonant, and of the several words marking the stressed syllable in a line of the poem. यहाँ पर ये जो है, ये क्या होता है आपका? ये होता है इनिशियल लेटर। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग का लेटर होता है। जनरली कौन सा लेटर? कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट लेटर है जो सेवरल वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स में स्ट्रेस्ड होता है और एक लाइन में आता है। आप सीधा सीधा समझो, किसी एक लाइन में कितने कॉन्सोनेंट वर्ड आए हैं जिनसे वो लेटर स्टार्ट हुआ है, यानी कि एक लेटर होना चाहिए। कॉन्सोनेंट में कोई भी लेटर हो सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉल साउंड होते हैं। इनके अलावा जितने भी लेटर बचे वो कॉन्सोनेंट है। तो जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर हैं उनमें से किसी भी लेटर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है और अगेन उसी लेटर से दूसरा वर्ड या तीसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एक लाइन की बात कर रहे हैं हम, उस लाइन में एलिटरेशन होता है। एग्जाम्पल देखो एलिटरेशन का इस फॉर्म में, स्टूल, स्टेड, टू स्माइल। देखो स्टूड, स्टिल, टू स्माइल, ये एक लाइन में आया है। यहाँ पे देखो स्टूड इज स्टार्टिंग विद एस, इट्स अ कॉन्सोनेंट। Still starting with S, it's a consonant. Smile starting with S, it's a consonant.
ठीक है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है 3 वर्ड्स का जो सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एलिटरेशन लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट देखो, ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये भी एक लाइन में आ रहे हैं, स्टार्टिंग विद टी, स्टार्टिंग विद टी। अच्छा, बीच में अगर कोई और 2-3 वर्ड आते हैं, डजेंट मैटर, पूरी लाइन में कहीं भी दो, अगर एक से ज़्यादा मतलब 2 भी होंगे तो भी वहाँ पे एलिटरेशन होगा। आगे देखो, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, ये भी एस से स्टार्ट है और ये भी एस से स्टार्ट है, जो एक लाइन में आए हैं, एलिटरेशन लिटरेरी डिवाइस आया है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट is a description that refers a character or an event, but it is used to describe a different situation or character. एपिथेट ये ज़्यादातर एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये एडजेक्टिव का कोई वर्ड के फॉर्म में आता है, लेकिन ये जिस एडजेक्टिव के साथ आया है, जिस कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर के लिए या किसी इवेंट, किसी चीज़ के लिए आया है, ये उसको डिस्क्राइब नहीं करता है, ये किसी और डिफरेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है या डिफरेंट कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। यानी कि आया तो जैसे कि ये एक कैरेक्टर है और इसके साथ ये एडजेक्टिव आया है, बट ये इसके लिए नहीं आके किसी और के लिए आया है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट को आप मान लो कि ठीक है, वन ऑफ द एडजेक्टिव वर्ड, बट उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर का मतलब वो एडजेक्टिव जिस चीज़ के साथ लगा हुआ है, जो वर्ड, उसके लिए नहीं आके किसी और के लिए आया है। Transient feet is an example of the transferred epithet in the poem. It refers to human feet, but it is used to describe the lack of the permanence of human life. अब ये कोई यहाँ पे transient feet, ये हमने पढ़ा था, लास्ट में आया था। ट्रांजिएंट फीट का मतलब ह्यूमन फीट, ठीक है, लेकिन ह्यूमन फीट का मतलब क्या हुआ, सामने देख सकते हो आप, कॉन्क्रीट चीज़ है, बट एग्जैक्टली क्या मीनिंग है? ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी फीट, तो फीट हमारे टेम्पररी कैसे हो सकते हैं, समझने की कोशिश करो। लाइक फीट क्या हुआ, आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, इसके साथ एक एडजेक्टिव आया है ट्रांजिएंट, तो ये एडजेक्टिव फीट के लिए नहीं आया है। मतलब टेम्पररी फीट का कोई मतलब नहीं निकलता, यानी कि ये टेम्पररी किसी और चीज़ के लिए आया है। किस चीज़ के लिए आया है? लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इस थॉट के लिए आया है। यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन को डिस्क्राइब करने के लिए फीट लिखा गया है। फीट किसके होते हैं? ह्यूमन, तो आप समझ लो, अगर हम यहाँ पे ह्यूमन भी लिखते हैं कि ट्रांजिएंट ह्यूमन, तो अगेन इसका मतलब क्या हुआ? द लैक ऑफ द परमानेंसी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, नॉट द ह्यूमन। ह्यूमन टेम्पररी नहीं है, उनकी लाइफ टेम्पररी है, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। ऑक्सीमोरॉन, कुछ लिटरेरी डिवाइस होती हैं जो समझनी पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, अगेन एंड अगेन, मीन्स मेनी टाइम्स यू हैव टू रीड द लाइन्स ओनली, देन यू विल बी एबल टू टेक दैट लिटरेरी डिवाइस आउट, एंड दिस इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस। इसको समझना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीमोरॉन। In this literary device there are two opposite ideas. क्या होता है इसमें? 2 opposite ideas होते हैं that are joined to create an effect like labored ace. ये दोनों बिल्कुल opposite ideas हैं। In the poem is an example. Labored meaning with great difficulty या hard work, बताया था ना। लेबर्ड का मतलब क्या हुआ? ग्रेट डिफिकल्टी या हार्ड वर्क। एंड ईज का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल, बहुत ईजीली। Both the words are opposite in the meaning, but they are clubbed together. Clubbed मतलब साथ साथ आए हैं वहाँ पर, यानी कि एक ये वर्ड हुआ और एक ये वर्ड हुआ। अगर दोनों ही वर्ड साथ आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन। जैसे मैंने ये लिख दिया, लव हेट, बिल्कुल अलग है, और ये दोनों साथ आए हैं, मतलब कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगा? ये ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। लाइफ डेथ, हेल्प इन हेल्प, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑक्सीमोरॉन के। नेक्स्ट देखो, personification example is it silences, silences. The situation has been given the human quality of silence. It silences silence. अगर आपको नहीं समझ में आ गया कि यहाँ पे पोइट के लिए आया है, ठीक है, अब आप बोलोगे बट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? देखो, इट्स एंड इट नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग मतलब साइलेंसेस, साइलेंसेस किसको बोल रहा है? सिचुएशन को। अब सिचुएशन साइलेंस थोड़ी हो सकती है, ठीक है। सिचुएशन इज जस्ट नॉन लिविंग थिंग, ह्यूमंस आर रिमेन साइलेंट। तो यहाँ पर जहाँ पर इनएनिमेट चीज को एनिमेट करके प्रेजेंट किया जाता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। देखो, ये रहा पर्सन,
पर्सन का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग, और ये रहा हमारा फिक्शन। फिक्शन मतलब इमेजिनरी थिंग या आप बोल सकते हो नॉन लिविंग थिंग। तो जब एक नॉन लिविंग थिंग को पर्सन बना दिया जाता है, लिविंग थिंग बना दिया जाता है, तो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे नॉन लिविंग क्या है, यहाँ पे है नॉन लिविंग सिचुएशन। इसको क्या बना दिया, साइलेंट। साइलेंस का मतलब कि सिचुएशन साइलेंट है। अगर आप हिंदी में भी बोलोगे तो ये क्या हुआ, सिचुएशन साइलेंट नहीं हो सकती बिकॉज इट इज नॉन लिविंग, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। एक लिटरेरी डिवाइस और देखो, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट होता है द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, बिना किसी पॉज के। पॉज मतलब कॉमा हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, मतलब इनमें से कोई भी पॉज नहीं आया है, बस लाइंस आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं थ्रू आउट द पोएम। ये पूरी पोएम में है, हम देख लेते हैं एक बार, मैं आपको बता देती हूँ, पूरी पोएम में है ये। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये देखो, द कार्डबोर्ड शो हाउ इट वॉज, ये लाइन फिनिश हुई, यहाँ पे कोई पॉज नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा है, इनके बीच में कहीं भी कोई भी पॉज नहीं है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, हेयर इज नो एंजैबमेंट, तो हम बोल सकते हैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 इज हैविंग एंजैबमेंट। आगे देखो, ये देखो, ऑल थ्री स्टूड द स्माइल थ्रू देयर हेयर, नो पॉज एट द एंड, यहाँ पर आकर आया है, तो ये स्टैंजा नंबर 2 की जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन है वहाँ पर क्या है, एंजैबमेंट है। आगे देखो, some 20-30 years later she would laugh at the snapshot with Betty and the dolly said, and look how they dressed us, कोई भी पॉज नहीं है, फॉर द बीच एंड द ड्रेस्ड अस यहाँ पे होना चाहिए था, कॉमा नहीं है। बोथ वॉज पास्ट, माइन इज द लाफ्टर, बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ एस, यहाँ पे भी कोई भी पॉज नहीं है। तो जो एपिथेट है आपका, एंजैबमेंट है, वो थ्रू आउट द पोएम है। थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? इसमें पोम में ज़्यादातर आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मीन्स सम ऑफ द पार्ट और अ लाइन, या तो एक या दो लाइन दी होंगी या कुछ 3-4 लाइनें दी होंगी पोम से, और उसमें से फिर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क का आता है, ज़्यादातर 1 या 1.5 मार्क के आते हैं, वो आपको जस्ट इन अ लाइन, इन अ वर्ड, इन अ फ्रेज यू हैव टू आंसर दैट, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द पोम वट एवर इज लेफ्ट टू बी अननोन। सो आंसर देखो, कार्डबोर्ड क्या है, तो पोम द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स अ फ्रेम। कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, फ्रेम विच सपोर्ट्स द फोटोग्राफ, जिसके पीछे, जिसके ऊपर फोटोग्राफ चिपकाया जाता है। दिस वर्ड हैड बीन यूज्ड इन द पोम बिकॉज द पिक्चर इज वेरी ओल्ड एंड व्हेन द कार्डबोर्ड वाज यूज्ड एज द फोटो फ्रेम। वो जो पिक्चर है बहुत पुरानी है, ऑब्वियसली कितना टाइम हो गया है, 42 ईयर्स की जब उनकी मदर थी तब वो जिंदा थी, तो अब तो उससे भी बहुत आगे साल हो गए, तो बहुत पुरानी पिक्चर है, उसको सपोर्ट करने के लिए जिस फ्रेम का यूज़ किया गया है उसको बोला गया है कार्डबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What has the camera captured? The camera has captured the poet's mother and her 2 cousins. कौन कौन था कैमरे में? कैमरा से अंकल ने जो फोटोग्राफ खींचा था, पोर्ट की मदर थी, उनकी 2 बहन थी, बेटी एंड डॉली, on the beach. They went for paddling where her mother's uncle captured the photograph in between a moment. अंकल ने suddenly ही ये फोटोग्राफ खींच लिया था, and some of the photographs वो खींच रहे थे, and this was the photograph which captures their smile. Her mother was around 12 years old and was in the middle. वो लगभग 12 साल की थी और दोनों लड़कियों के बीच में थी. She was holding the hands of her cousin who were on the side of her and it was her mother's favorite past memories. ये उनकी one of the favorite past memories है. ये कैसे बोल सकते हैं हम? Because this is the same memory she was once sharing with the poet. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं उनकी ये फेवरेट मेमोरी थी और दोनों लड़कियां उनके दोनों तरफ हाथ पकड़कर खड़ी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? द लाइन्स एंड द सी which appears have changed less depicts that the sea which touched her mother's feet is one of the which has not changed over the years. तो क्या जो था वो चेंज नहीं हुआ है बहुत सालों के बाद ही? सी, समुद्र, जिसने उनकी मदर के फीट को छुआ था. Whereas her mother and her cousin grew older. अब उनकी मदर और जो उनकी कज़न है वो बड़ी हो गई हैं, अडल्ट हो गई हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द ओल्ड एज जा रही हैं. द सी सिंबलाइजेज इटर्निटी. सी कैसा है? सी वन ऑफ द नेचुरल एलिमेंट,
नेचुरल एंटाइटी है, वो कैसा है, एटर्नल, वो हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. एंड इमोर्टैलिटी, जो कभी अमर होता है. वेयर इज मैन इज अ मोर्टल, जो मैन है, पर्सन है, वो कैसे होते हैं, मोर्टल, यानी कि हम लोग मर जाते हैं, वन डे वी हैव टू डाई. द पोइट इज सैड अबाउट हर मदर्स डिमाइज 12 years ago and her laugh is her favorite past memory. लगभग 12 साल के पहले, तो अगर हम ये हिसाब लगाएं कि उस टाइम पे 42 ईयर्स की जब उनकी मदर थी, वो जिंदा थी, तो 12 साल अगर हम बोल सकते हैं तो 44 या 54 लगभग, मीन्स आफ्टर 50, अबव 50 शी डाइड. तो 12 साल हो गए हैं अब उनकी डेथ को. और अब क्या है, जो पोइट है उसकी जो पास्ट फेवरेट मेमोरी है, दैट इज दैट फोटोग्राफ इन विच शी कुड सी हर मदर. ठीक है. Next question, the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? The poet's mother laughed at this snapshot, recalling her favorite pastime. उनकी मदर क्यों हंस रही थी? क्योंकि उनको याद आ रहा था, जो उनकी फेवरेट पास्ट मेमोरीज थी वो याद कर रही थी. She looked back at the photograph and remembered how the parents would dress them up for the beach holiday. उनको क्या याद आ रहा था, क्या चीज़ शेयर कर रही थी कि कैसे उनके पेरेंट्स ने उनको तैयार किया बीच हॉलीडे के लिए. Her laugh indicated her remembering the innocent days and nostalgia feeling. Behind this laugh is also the feeling of pain that those days won't be back. क्या याद कर रही है भाई, वो बहुत प्यारे दिन थे, बहुत इनोसेंट दिन थे, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है उन मेमोरीज को याद करके, एक सैड फीलिंग आ रही है, इसके साथ साथ एक पेन, इस लाफ के साथ एक पेन भी है. पेन क्या है कि अब वो दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे, वो मेमोरीज वापस नहीं आएंगी. Next question, what is the meaning of the line, both rye with the liberties of loss? These lines means that the poet's mother felt pain whenever she saw the old photograph, because the innocent childhood days would never be back. Those are just the memories, while the poet has lost his mother 12 years ago and she misses her lot and recalls her laughing and pointing out the outfits they used to wear at the beach holiday. Both of them lost समथिंग, यानी कि उनकी मदर ने क्या लॉस्ट किया, इनोसेंट चाइल्ड डेज उनकी मदर ने लॉस्ट कर दिया है. एंड पोइट ने क्या लॉस्ट किया है, पोइट ने अपनी मदर को लॉस्ट कर दिया है, उनकी स्माइल को लॉस्ट कर दिया है. और दोनों ही चीज़ें अब वापस नहीं आएंगी, दोनों ही जो है वो बिकॉज ऑफ द मीन्स ट्रैप ऑफ द टाइम दे हैव फिनिश्ड. लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफर टू? द वर्ड दिस सर्कमस्टेंस, इसका क्या मतलब है? इट रिफर्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट विच इज पेनफुल मेमोरीज ऑफ अ मदर हु हैव बीन डिसीज्ड 12 years ago. पेनफुल मेमोरीज हैं जो इस सिचुएशन की पोइट की वो बताई जा रही हैं. While looking at the old photograph of her mother's childhood makes her miss her more. बार बार उनकी मदर का जो चाइल्डहुड का वो फोटोग्राफ है उसको देखकर वो उनको और ज़्यादा मिस कर रही हैं. She remembers her laughing and how the photograph was her favorite past memories. उनको क्या याद आता है, उनको उनकी लाफिंग याद आ रही है और उस फोटोग्राफ में जो उनका फेवरेट मेमोरी पास्ट टाइम था वो याद आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज़ द वन ऑफ द स्वीट एंड स्मॉल we can say a very small poem but full of the nostalgia. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया. जस्ट गो थ्रू विद द पोम एंड ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द एक्सट्रैक्ट and you will just all set to give the exam. Now I will see you in the next video. Thank you.